हेलो खीरो सर। हेलो खीरो सर। हेलो सर स्टार्ट करिया Yes, तीनटा sir. तो Yes, sir. पिला लॉनर जॉइन कलेन स्टार्ट आज्ञा। हाँ Again. Sure. Good afternoon, learners. And today we will be discussing about share capital. That is your MCO 10 Block 2, your corporate legal framework. And so for this, may I please request Mr. Dr. Biswaranjan Mishra sir to deliver his lecture, and he is now working as assistant professor Utkal University. And we are very pleased and very thankful. We should thankful to him that he, despite of his busy schedules, and he agreed to our proposal to take classes for our MCOM students. And so today the topic is share capital. And in this topic uh, we will be covering share capital, shares, types of shares, issue of shares, application of shares, allotment of shares, and forfeiture of shares, reissue of shares, and the concept of shareholders and dividend, and meetings of shareholders, and so many topics in this area. Okay, so may I please request Dr. Biswaranjan Mishra sir to start the session. Thank you. Okay. It's my pleasure. Sir, kindly put my slides. Sure, sir. Okay. Okay. Yeah. Okay. So in our last class, we have discussed regarding some introductory concept of Company Act 19 to Companies Act 2013. We have discussed what is a company. We have discussed how many types of companies are there. Then we have discussed regarding something called types of company, features of company. Then we have discussed other concepts related to company. In today's presentation, I will cover 5 units. Next slide, please. So what is my learning objective of this session? First, we will start with unit 6. We will cover 5 units: unit 6, 7, 8, 9, 10. Unit 6 deals with meaning and types of share. Unit 7, issue and allotment of share. Unit 8, transfer of share and depository system. Unit 9, declaration and payment of dividend. Unit 10 is shareholders meeting. First, we will start with share. What is share? We will discuss it. Now please see, शेयर कहने से क्या समझते हैं? जैसे एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, वो कैपिटल को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Each such part is known as one share. So what is a share? Share is a part of share capital or total capital of the company. So capital बिजनेस को कौन देता है? ओनर देते हैं. तो यहाँ पर एक ओनर ना होकर बहुत सारे ओनर्स होते हैं. जो आदमी शेयर खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर्स होते हैं. तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी. Next slide, please. So what is share? Share capital of a company. Share is a capital of a company which is divided into units. Each such part is known as share. So share means a fractional part of the company. Now please see, the person who buy the share is known as shareholder. मैं बताया था shareholders are the owners. We have already discussed.
कंपनीज एक्ट टेल्स दैट शेयर इंक्लूड स्टॉक। सो शेयर का मतलब शेयर है और स्टॉक है। एक नया कंसेप्ट आ गया, व्हाट इज स्टॉक। अभी हम बात करेंगे स्टॉक का मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉक का मतलब समझने से पहले हम क्या करेंगे, आप लोग मार्केट में जाते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, तो पेंसिल एक एक पेंसिल भी मिलता है आपको, और एक तरह से पेंसिल भी मिलता है आपको। 12 पेंसिल एक साथ एक पैकेट में डालकर आपको मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं डॉर्जन्स ऑफ पेंसिल। अगर पेंसिल लूज में एक एक मिलता है या नहीं तो डॉर्जन में मिलता है। अगर हम 12 का पैकेट बना दे, ये लूज वाला पेंसिल को समझ लीजिए शेयर, और वो पैकेट को समझ लीजिए स्टॉक। सो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज ए बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर। कुछ फुल्ली पेड शेयर का बंडल बनाते हैं, एक एक बंडल को हम बोलते हैं स्टॉक। सो व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक इज द एग्रीगेट कंसोलिडेटेड होल्डिंग ऑफ शेयर्स। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, आप मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं आधा दर्जन पेन देना, यानी तो आधा दर्जन पेंसिल देना। सो आधा दर्जन पेंसिल मिल सकता है लेकिन आधा पेंसिल नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है। सो स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन बट शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। तो कैसे स्टॉक शेयर में कन्वर्ट होता है, मैं पहले बता दिया हूं। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक्स, लेकिन इसके लिए कंपनी का एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया था कल, परमिट करना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए। और ये चीज कंपनी का शेयर होल्डर एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके बोलेंगे हमारा कंपनी का शेयर को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक बार स्टॉक हो गया, स्टॉक कैन ऑल्सो बी रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स। शेयर्स को स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, बाहर के मार्केट में स्टॉक बहुत चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। मैं बता रहा था शेयर और स्टॉक में क्या है, शेयर फुल्ली पेड अप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होता है, क्योंकि स्टॉक इज ए बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। हर एक शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू होता है, जैसे 10 रुपये का शेयर या 15 रुपये का शेयर या 20 रुपये का शेयर या 100 रुपये का शेयर, हर एक शेयर का एक क्या नॉमिनल वैल्यू होता है। लेकिन स्टॉक का कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि बंडल बनाना है। कितने का बंडल बनाते हैं, अगर 6 का 10 रुपये का शेयर का बंडल बनाया, एक स्टॉक का दाम हो गया 60। अगर 12 का बंडल 10 रुपये का शेयर का बनाया, वो स्टॉक का दाम हो गया 120। अगर 15 का या 20 का बंडल बनाया, वो हो गया 200। इसीलिए स्टॉक का कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट में बताया था शेयर ट्रांसफर हो सकता है फ्रैक्शन, शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन बट स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। मैं जैसे बताया था ना, कंपनी के कैपिटल छोटा छोटा पार्ट होता है, शेयर लिखा होता है, शेयर 1 2 3 4, इस तरह से शेयर का एक एक नंबर होता है, लेकिन स्टॉक का कोई नंबर नहीं होता है। हर एक शेयर इक्वल डिनोमिनेशन का होता है, जैसा 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का लेकर, लेकिन हर एक स्टॉक इक्वल डिनोमिनेशन का नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, next slide please. Next we will discuss regarding different types of share. Companies Act सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है इंडिया में सिर्फ 4 तरह का शेयर इशू हो सकता है। क्या क्या 4 तरह का शेयर है? पहला शेयर है प्रीफरेंस शेयर, सेकंड शेयर है इक्विटी शेयर, थर्ड शेयर इज इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स, फोर्थ शेयर इज स्वेट इक्विटी शेयर। 4 तरह का शेयर, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर। पहले एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रीफरेंस शेयर। बेटा प्रीफरेंस शेयर क्या है? प्रीफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जिसका 2 प्रीफरेंशियल राइट है। कितना प्रीफरेंशियल राइट है? 2 प्रीफरेंशियल राइट। व्हाट आर द प्रीफरेंशियल राइट? किसके ऊपर ये प्रीफरेंशियल राइट है? इक्विटी शेयर के मुकाबले ये 2 प्रीफरेंशियल राइट प्रीफरेंस शेयर्स को हुए। क्या क्या है वो राइट्स? पहला राइट, उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? प्रीफरेंस शेयर एक फिक्स्ड डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को
फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा प्रिफरेंशियल राइट जो प्रिफरेंस शेयर का है वो है कंपनी आज अगर वाइंडिंग अप या लिक्विडेट हो जाए या बंद हो जाए तो जो एसेट बेचकर जो पैसा आएगा वो पैसा पहले क्रेडिटर ले जाएगा, फिर पहले जब शेयर होल्डर की बारी आएगी पैसा लेने की, पहला पैसा किसको मिलेगा? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो प्रिफरेंस शेयर का दो प्रिफरेंशियल राइट होता है, उनको फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है और उनका क्लेम पहले सेटल होता है प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर कितने तरह का है? प्रिफरेंस शेयर को हम चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या चार ब्रॉड कैटेगरी? पहला है क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर। व्हाट इज क्यूमुलेटिव, व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव, बात करेंगे। व्हाट इज क्यूमुलेटिव? हमको पता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। बेटा डिविडेंड कहां से मिलता है? प्रॉफिट से मिलता है। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर है, जिस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का डिविडेंड क्यूमुलेट होगा। इसका मतलब इस साल 5 रुपया मिलना था, नेक्स्ट साल भी 5 रुपया मिलना था, क्योंकि उनको डिविडेंड फिक्स है। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये जो 5 रुपया नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर में, उनको नेक्स्ट साल 10 मिलेगा। बात समझ में आ गया? जब तक प्रॉफिट नहीं हुआ है उनका डिविडेंड का क्लेम एक्यूमुलेट होता जाएगा। उस तरह का प्रिफरेंस शेयर को बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अगर एक्यूमुलेट नहीं होता है, अगर प्रॉफिट होता है फिक्स रेट का मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होता है नहीं मिलेगा, उस तरह का शेयर को हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट और एक तरह का प्रिफरेंस शेयर है पार्टिसिपेटिव प्रिफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रिफरेंस शेयर। व्हाट इज पार्टिसिपेटिव प्रिफरेंस शेयर? ये प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक फिक्स्ड रेट का डिविडेंड पहले ले जाएंगे। नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अमाउंट फिक्स नहीं है। लेकिन अगर कंपनी में पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर का एक थ्रेश होल्ड लिमिट होता है, मतलब सपोज प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपया डिविडेंड मिल गया, इक्विटी शेयर का थ्रेश होल्ड लिमिट है 20। इसका मतलब इक्विटी को 20 के अंदर डिविडेंड मिलेगा तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इक्विटी को 20 से ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है तो ये लोग फिर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। किसके साथ? इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू ए थ्रेशोल्ड लिमिट। नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ फिक्स रेट का डिविडेंड लेते हैं इक्विटी शेयर से पहले, उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और एक तरह का प्रेफरेंस शेयर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज कन्वर्टेबल? दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपना प्रेफरेंस शेयर को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और एक तरह का प्रेफरेंस शेयर है नॉन कन्वर्टेबल। इसका मतलब दिस प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। और दो तरह का प्रेफरेंस शेयर है, एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसको पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में पेमेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इंडियन कंपनीज एक्ट बोलता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड विद इन 20 इयर्स। इसका मतलब अगर 20 साल का प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उनको पैसा 20 साल के बाद मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उनको पैसा, उनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं है, उनको पैसा सिर्फ कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम में मिलेगा। इसको बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो वी हैव कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे
डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स। फर्स्ट शेयर गया प्रिफरेंस शेयर, और एक शेयर है इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज इक्विटी शेयर? कंपनी एक्ट में इक्विटी शेयर को डिफाइन नहीं किया गया है। कंपनी एक्ट बोलता है जो शेयर प्रिफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी प्रिफरेंशियल राइट, दे आर नोन एज कॉमन शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है, उनको डिविडेंड मिलेगा प्रिफरेंस को डिविडेंड मिलने के बाद, उनका पेमेंट होगा प्रिफरेंस का पेमेंट होने के बाद एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक बहुत बड़ा राइट होता है, वो राइट होता है कंपनी चलाने का राइट। कंपनी कैसे चल सकता है? वोट देने से चल सकता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज ए वोटिंग राइट, दे वोट फॉर इंपोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कंपनी। सो इसको बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, आज के डेट में 2001 के बाद, रूल 2001 के बाद एक नया तरह का इक्विटी शेयर आया है, उसका नाम है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट मतलब दो इक्विटी शेयर का दो टाइप का राइट्स रहेगा। जैसे ये जो डिफरेंशियल राइट्स रहेगा, इसमें दो चीज के ऊपर डिफरेंशियल राइट होगा। पहला चीज वोटिंग के ऊपर, दूसरा चीज डिविडेंड के ऊपर। जनरली कंपनी में पता होता है वन शेयर वन वोट, अगर आपके पास एक शेयर है एक वोट मिलेगा। लेकिन डीवीआर बोलता है वन शेयर कैन बी टू वोट्स। इसका मतलब आपके पास अगर दो डीवीआर से तो आपके पास 4 वोट हो सकता है। तो डिफरेंस रहेगा किसके बीच में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड एंड फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग। लेकिन कंपनी जो इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हो, और कंपनी अपना पूरा शेयर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% डीवीआर इशू कर सकता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है। इसका मतलब 100 अगर आपका कैपिटल है, मैक्सिमम 25 डीवीआर आप इशू कर सकते हैं। और ये इस डीवीआर इशू करने के लिए अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी विथ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट टाइप का शेयर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड इज स्वेट इक्विटी शेयर। बेटा स्वेट का मतलब क्या है? स्वेट का मतलब पसीना। जो लोग कंपनी के लिए पसीना बहाए हैं उनको ये शेयर दिया जाता है। बेटा कंपनी के लिए पसीना कौन बहा सकता है? एम्प्लॉइज बहा सकते हैं, डायरेक्टर्स बहा सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फार्म है कैडिला फार्मा। सपोज कैडिला फार्मा में अभी कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च हो रहा है। एक टीम में कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट और कुछ एम्प्लॉय मिलकर कोरोना वायरस का वैक्सीन डेवलप कर दिए। तो ये एक नॉलेज, नो हाउ है, ये पैटेंटेड है उन साइंटिस्ट के नाम पर। ये नो हाउ वो कैडिला फार्मा को दे देंगे, उनके बदले में कैडिला फार्मा उनको कुछ इक्विटी शेयर्स देगा। वो इक्विटी शेयर्स होगा स्वेट equity shares. So sweat equity shares are issued only to the employees and directors of the organization for transferring the know-how, intellectual property rights, value addition, for their value addition to the company. Sweat equity shares are issued by company to employees and directors. Next. So next, कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। बेटा स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशन एक्ट में लिखा हुआ है? पहला, स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए। वो रिजोल्यूशन में लिखा जाएगा कितना स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू करेंगे। सबसे बड़ा कंडीशन, कंपनी बनने का 1 साल के अंदर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी बनने का, कमेंस होने का 1 साल बाद ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकता है। अगर आपका कंपनी लिस्टेड है कोई स्टॉक एक्सचेंज में, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने से पहले आपको सेबी का परमिशन चाहिए। दीज आर द लीगल एस्पेक्ट फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 54। विथ दिस वी कंप्लीट यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट यूनिट विल डिस्कस यूनिट नंबर 7, that is regarding issue and allotment of share. यूनिट 6 अभी ओवर हो गया, अभी हम यूनिट 7 में जाएंगे। यूनिट 7 में है इशू ऑफ शेयर्स और allotment of shares. Now generally a company issues shares. हमें क्लियर,
why it issues share? To raise money from the market. Why money is required? For the development and growth of the business. And company can issue different type of share. I have discussed. Company can issue different share. Company can issue equity share. Company can issue equity share with differential voting right. Company can issue another sweat equity shares. Okay. Now please see, we are discussing regarding when one company issues shares. So it gives the new shareholders the right to take dividend and the right to vote. Next slide. Next slide, please. Okay. Next, we will discuss what are the different type of issue of share. Generally, 5 तरह का issue of shares होता है. First one is public issue, next one is right issue, next one is composite issue, next one is bonus issue, next one is private placement. ये पांचों क्या है, हम एक एक करके बढ़ेंगे. First point, public issue. Next point, what is a public issue? Public issue का मतलब issue of shares by the company to the public. तो public issue होता है new issue market और primary market में. There are two type of market. One is primary market, another is secondary market. If the issue is between a company and shareholders, it is primary market. If it is between shareholders and shareholders, different shareholders only, it is secondary market. तो न्यू इस पब्लिक इशू हमेशा प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट में होता है. ये न्यू पब्लिक इशू के टाइम में कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है. मैं बताया था प्रोस्पेक्टस में के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे. तो प्रोस्पेक्टस यानी इनवाइटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो पब्लिक इशू है दो तरह का होता है. एक होता है IPO, एक होता है FPO. व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर. सेकेंड वन इज FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. व्हाट इज इनिशियल? इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम अगर कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करता है, इसको बोलते हैं IPO, पहला प्यार. कंपनी का पहला प्यार शेयर होल्डर के साथ फर्स्ट टाइम इश्यू किया शेयर, इसको बोलते हैं IPO. पहला प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है. IPO एक ही बार आता है. एक बार IPO हो गया, फिर कंपनी जितने बार पब्लिक इशू लाएगा उसको और IPO नहीं बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. पहला प्यार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना हो सकता है, फिर इसको बोलते हैं FPO. IPO एक बार होता है, FPO बहुत बार हो सकता है. नेक्स्ट, पब्लिक इशू ओवर. नेक्स्ट स्लाइड, राइट इशू. व्हाट इज ए राइट इशू? जनरली कंपनी क्या करता है, कभी कभी एक बार IPO हो गया, उसका कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए, अगर उसको और पैसे की जरूरत है वो FPO कर सकता है या नहीं तो राइट इशू कर सकता है. राइट इशू का मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बोलेगा मेरे को और पैसे की जरूरत है, मैं शेयर सिर्फ तुम लोगों को इशू करूंगा, इसको बोलते हैं right issue. So right issue is made only to the existing shareholders of the company. Okay, public issue is made to all, but right issue is made only to the existing shareholders of the company. Next slide please. Next slide is composite issue and bonus issue. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक इशू पढ़ा था. पब्लिक इशू में पब्लिक को इशू होता है, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होता है. पब्लिक इशू IPO और FPO हो सकता है, राइट इशू सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है. नेक्स्ट, कंपोजिट, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक इशू एंड राइट इशू. कुछ शेयर पब्लिक को देंगे, कुछ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे. अगर इस तरह का इशू होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इशू. हमें क्लियर? कुछ शेयर देते हैं पब्लिक को, कुछ शेयर देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट इशू इज बोनस इशू. व्हाट इज ए बोनस इशू? जनरली कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट को हम किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं. शेयर होल्डर्स ये प्रॉफिट लेता है. कंपनी जनरली अपना प्रॉफिट का सारा शेयर होल्डर्स को नहीं देता है, कुछ हिस्सा देता है, कुछ हिस्सा रखता है. जो रखता है उसको बोलते हैं रिजर्व. अगर कंपनी के पास ये रख कर बहुत सारा रिजर्व हो गया, इसको बोलते हैं बहुत सारा कंपनी के पास फ्री रिजर्व है. अगर बहुत सारा फ्री रिजर्व है, कंपनी ये रिजर्व को कैपिटलाइज करेगा. कैपिटलाइज करके शेयर में कन्वर्ट करके जो शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दिया था डिविडेंड, उनको शेयर दे देगा. किसमें? फोकट में. अगर फोकट में क्यों? क्योंकि वो उनका पैसा है, उनको देना चाहिए था, ना देकर रिजर्व में रखा दे.
तो और वही रिजर्व को अभी शेयर में कन्वर्ट करके वही शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जा रहा है और उसको बोलते हैं बोनस इशू। तो बोनस इशू को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो बोनस इशू हम कहां से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्राइवेट प्लेसमेंट, बेटा व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। जनरली पब्लिक इशू में हम क्या करते हैं, शेयर को इशू करते हैं, किसको, पब्लिक को। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में हम सबके लिए खुला नहीं करते हैं शेयर इशू। शेयर इशू विल बी मेड टू ओनली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। If the share issue is made only to selected group of investors, it is known as private placement. Private placement का तीन तरह का हो सकता है। First one is preferential issue, next one is qualified institutional placement, third one is institutional placement program. Now what is preferential issue? Preferential issue में ये public issue होता है सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट को और कुछ कंपनीज को। और व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यहाँ पर पब्लिक इशू होगा ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, लाइक पेंशन फंड, इस तरह को अगर हम सिर्फ शेयर इशू करेंगे, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को अगर हम आईपीओ इशू करेंगे, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अगर इस तरह का इंस्टीट्यूशन को हम एफपीओ इशू करेंगे, आईपीओ एफपीओ अभी पढ़ा था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम, एफपीओ नेक्स्ट वाला चीज। अगर एफपीओ होगा उसका नाम होगा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। हमें क्लियर? सो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, शेयर पूरा पब्लिक को इशू ना होकर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को इशू होता है, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर? हम लोग इशू ऑफ शेयर अभी पढ़ा दिए हैं, अभी हम पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मैं बताया था कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करता है, द प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू मेक एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर। तो इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस पढ़कर लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं, हमको शेयर चाहिए, हमको शेयर चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन इज नॉट एन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग अप्लाई करेंगे उन सबको जो शेयर मिल जाएगा ये नहीं है। कंपनी उसमें से जितने को हो सके उतने को अलॉटमेंट करता है, जितना इशू उसका डिफाइन है उतना अमाउंट का अलॉटमेंट करता है। ये अलॉटमेंट बहुत सारा बेसिस है, कुछ को रिजेक्ट किया जाता है, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाता है, बहुत सारा चीज है। लेकिन अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का अप्लाई, शेयर होल्डर जब अप्लाई करते हैं, ऑफर करते हैं, कंपनी जब अलॉट करता है, एक्सेप्ट करते हैं। So offer and acceptance create a binding contract. Once the shares are allotted, there is a binding contract between the company and the shareholders. So allotment of share is the acceptance by the company of the shares, this of the application of the shareholders. Now this allotment must be communicated. It must be communicated to different shareholders. Next slide please. Okay. What are the general principle for allotment? First point, the allotment should be made by proper authority. ये allotment proper authority करना चाहिए। जनरली कंपनी में कौन proper authority है? BOD. BOD means board of directors. तो allotment must be made in reasonable time. इसका मतलब एप्लीकेशन का 5 साल हो गया है, allotment नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। एप्लीकेशन होने का एक reasonable time के अंदर क्या होना चाहिए? allotment होना चाहिए। The allotment must be communicated. आपको शेयर अलॉट हो गया, इसको कम्युनिकेट, नोटिस ऑफ अलॉटमेंट दिया ना होगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा जिसको शेयर अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देयर कैन नॉट बी एनी कंडीशनल अलॉटमेंट। आप ये काम करेंगे तो अलॉट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना पैसा देंगे आपको शेयर अलॉट, इस सब तरह का कुछ नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट ऑलवेज शुड बी अनकंडीशनल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
there are certain statutory provisions for allotment. Statutory means rules, regulations for allotment. पहला चीज 39(1) बोलता है अलॉटमेंट होगा जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट होगा। तो कंपनी का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, इतना अमाउंट होगा तो जाकर ये इश्यू वैलिड होगा, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरली एप्लीकेशन मनी का जो इसका होता है, एप्लीकेशन में अगर 5% जितना टोटल इश्यू का होता है उतना पैसा आता है तो हम अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी कंपनी का शेयर होल्डर पैसा देगा, जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन मनी एक सेपरेट अकाउंट बनाकर कंपनी रखेगा, उसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। वो एस्क्रो अकाउंट में एप्लीकेशन का पैसा रहेगा, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लगेगा। दैट अकाउंट कैन नॉट बी टच्ड अनलेस द शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड। नेक्स्ट, एक बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं होता है तो जो जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं उनका पैसे को वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा? लॉ बोलता है 30 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा। एक बार अलॉटमेंट हो गया, हम आरओसी को या अलॉटमेंट के बारे में खबर देंगे, हम लोग इतना अलॉटमेंट कर दिए, 39(4) बोलता है। नेक्स्ट, अगर आपका कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है, तो अलॉटमेंट होने के टाइम में आप स्टॉक एक्सचेंज को भी खबर देंगे, हम शेयर्स को अलॉट कर दिए हैं, प्राइमरी इशू हो गया है, अभी इसका सेकेंडरी मार्केट खोलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर यूनिट 7। 2 units we have complete, unit 6 over, unit 7 over. Next we will go to next slide, the next unit, that is transfer of share and a depository system. तो पहले हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैं बताया था एक पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन on transfer of share, which restrictions are put in the article of association of the private company. So shares are movable property and shares must be transferred. Transfer मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा सकता है in the manner prescribed in AOA. AOA का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिस मैनर में बोलता है उसी प्रोसीड्यूर को फॉलो करके कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लैंक ट्रांसफर। बेटा ब्लैंक ट्रांसफर क्या है? ब्लैंक चेक जानते हो ना, चेक का पूरा भर लिए हैं, सिर्फ नाम नहीं लिखे हैं। उसी तरह से जब भी कंपनी का शेयर ट्रांसफर होता है एक ट्रांसफर डीड बनता है। ट्रांसफर डीड में जो ट्रांसफर करना चाहता है वो साइन करेगा, जिसके नाम पर ट्रांसफर होगा वो साइन करेगा। लेकिन ब्लैंक ट्रांसफर में क्या होता है, मैं अगर तुमको कुछ शेयर ब्लैंक ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगा, अपना साइन करूंगा, लेकिन आपका नाम नहीं लिखूंगा, नाम के जगह पर ब्लैंक छोड़ दूंगा। इसका मतलब आप अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं आप उसको ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आदमी किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है वैसे ही कर सकता है। ए विल मेक ब्लैंक ट्रांसफर टू बी, बी विल डू इट टू सी, सी टू डी, डी टू ई, इस तरह से घूमता रहेगा। लेकिन यह क्या जिंदगी भर घूमेगा? नहीं, कंपनी एक्ट बोलता है ब्लैंक ट्रांसफर हो सकता है मैक्सिमम 60 डेज के अंदर। 60 डेज के बाद कंपल्सरली लास्ट वाला आदमी जो रहेगा उसका नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसका नाम को लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ब्लैंक ट्रांसफर का ये शॉर्ट नोट हमेशा आता है, व्हाट इज ब्लैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पर शेयर जाने को बोलते हैं ट्रांसफर। व्हाट इज ट्रांसमिशन? ट्रांसफर इज ए वॉल्यूंटरी एक्ट, बट ट्रांसमिशन इफ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ जबरदस्ती आपसे शेयर लेकर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जैसे मेरे नाम पर रिलायंस का कुछ शेयर है, अगर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो शेयर मेरे वाइफ के नाम पर या मेरा लीगल आयर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर मैं कुछ रिलायंस का शेयर लिया हूं, मैं इंसॉल्वेंट बन गया तो मेरा शेयर ऑफिशियल रिसीवर ऑफिशियल असाइनी को
क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज वॉल्यूंटरी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज कंपल्सरी। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर मैं बता रहा था, ट्रांसफर हमेशा वॉल्यूंटरी होता है, ट्रांसमिशन कंपल्सरी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसफर में ट्रांसफर डीड बनाना पड़ता है, ट्रांसमिशन में कोई डीड वगैरह नहीं, सिर्फ एक क्या करना है, एक इंटीमेशन कंपनी को देना है, मैं लीगल एयर हूं, इनका डेथ हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट और लीगल एयर सर्टिफिकेट लगाकर कंपनी को दे दीजिए, आपके नाम पर शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अच्छा, ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी लगता है, यहाँ पर तो ट्रांसफर डीड नहीं बनता है, स्टाम्प ड्यूटी लगने का चांस ही नहीं है। सो ट्रांसफर में कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, कंपनी आर्टिकल में लिख सकता है कोई भी शेयर होल्डर 2 साल तक शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसमिशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई लगा सकता है क्या मैं कितने 2 साल के अंदर मैं मरूंगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, 2 साल के अंदर मैं इंसॉल्वेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसमिशन में कोई कंडीशंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपोजिटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए डिपोजिटरी सिस्टम। बेटा देखो मेरे जेब में 2000 रुपया है, तो एक 2000 रुपया है और एक एटीएम कार्ड है। 2000 रुपये में रुपया 2000 है, एटीएम कार्ड में भी 2000 रुपया है, लेकिन ये जो जेब में 2000 है वो नोट है, उसको बोलते हैं फिजिकल नोट, और जो एटीएम में 2000 है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नोट और डिजिटल नोट। ओके, तो नोट जैसे 2 वे में हो सकता है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कंपनी का शेयर आज के डेट में 2 फॉर्म में रह सकता है, फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को रखने को बोलते हैं डिपोजिटरी सिस्टम। तो डिपोजिटरी सिस्टम में शेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है आपका अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में पैसा रहता है, बैंक अकाउंट में, शेयर रहता है डीमैट अकाउंट में। तो इसमें शेयर डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका पैसा रहता है डिपोजिटरी सिस्टम में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का क्या फायदा है, ये इजी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मेरे जेब में 5 लाख रुपया है, मैं एक ही झटके में 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। हमें क्लियर, क्योंकि मैं एक बुक एंट्री के वे में मेरे अकाउंट से कट जाएगा, आपके अकाउंट में आ सकता है, आपके अकाउंट से कट जाएगा, किसी दूसरे के अकाउंट में आ सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ बाय बुक एंट्री। तो जनरली डिपोजिटरी सिस्टम में शेयर्स किसमें रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है या डीमैट फॉर्म में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिस अकाउंट में रहता है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, और ट्रांसफर होता है किसमें, बुक एंट्रीज में। इसका मतलब ट्रांसफर के लिए शेयर सर्टिफिकेट को बार बार बदलना नहीं चाहिए, बदलने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। व्हाट इज स्क्रिप्टलेस, शेयरलेस, शेयर है लेकिन शेयर किसमें है, शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेस सिस्टम ट्रेडिंग, डिपोजिटरी सिस्टम का ये एक फीचर्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। फर्स्ट फीचर्स, शेयर्स किसमें रहता है, डीमैट फॉर्म में रहता है। डीमैट फॉर्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर का कोई नंबर नहीं होता है, जैसे फिजिकल फॉर्म में शेयर का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर रहेगा उसका कोई नंबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये डिपोजिटरी सिस्टम में 4 पार्टी इन्वॉल्व है। फर्स्ट, 4th नंबर से शुरू करेंगे, इशूअर, जो कंपनी इशू करता है। सपोज रिलायंस कंपनी मेरे को इशू किया है शेयर, तो रिलायंस कंपनी विल बी नोन एज इशूअर। थर्ड पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर, मेरे को शेयर इशू हुआ है तो मैं हो गया बेनिफिशियल ओनर। नेक्स्ट, और 2 पार्टी है, मैं शेयर को कहां पर रखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखूंगा। किसके पास रखूंगा, कोई तो बैंक होगा ना। इंडिया में 2 ही बैंक है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। ये दोनों को बोला जाता है डिपोजिटरी। एनएसडीएल और सीडीएसएल में को बोलते हैं डिपोजिटरी। ये एनएसडीएल के पास में या सीडीएसएल के पास में मेरा शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा।
ओके, लेकिन मेरे को एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग क्या किए हैं, उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो लोग अपना एजेंसी पूरा दुनिया इंडिया में खोल कर रखे हैं। जैसे रेलिगेयर सिक्योरिटीज हुआ, ये एक एजेंट है किसका, डिपोजिटरी का, इसको बोलते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इसमें रेलिगेयर हुआ, शेर खान हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, ये जितना ब्रोकिंग हाउस है वो सब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो उनके पास आप जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और डीमैट अकाउंट में क्या करिए, शेयर रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। और किसके नाम पर रहेगा, आपके नाम पर नहीं रहेगा, नाम होगा आइदर एनएसडीएल का या सीडीएसएल का। आप सो एनएसडीएल सीडीएसएल विल बी registered owner and you will known as, or those are known as nominal owner and you will are known as beneficial owner। मतलब कंपनी का जितना बेनिफिट होगा, डिविडेंड होगा, तो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। कंपनी का शेयर को बेच दिया गया, जो पैसा आएगा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन शेयर किसके नाम पर रहेगा, आइदर एनएसडीएल के नाम पर रहेगा या नहीं तो सीडीएसएल के नाम पर रहेगा। तो इसको बोलते हैं, चार पार्टीज इन्वॉल्व है, डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिशियल ओनर, इश्यूअर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो डिपोजिटरी सिस्टम में शेयर जो ट्रांसफर होता है बुक एंट्री में होता है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड, हाँ, बुक एंट्री के फॉर्म में होता है स्लाइड ट्रांसफर होता है शेयर्स। और ये डिपोजिटरी फॉर्म में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है। क्यों स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है, क्योंकि डिपोजिटरी फॉर्म में कोई ट्रांसफर डीड की बनने की जरूरत नहीं। शेयर्स आर इन व्हिच फॉर्म, शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू बुक एंट्री। और इसमें क्या होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, शेयर चोरी होने का रिस्क नहीं है, शेयर गुम होने का रिस्क नहीं है, सिग्नेचर मैच नहीं होने का रिस्क नहीं है। सो दैट डिलीवरीज, थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। पहला बेनिफिट क्या होगा, कोई बैड डिलीवरी नहीं होगा, मैं अभी बताया था। कोई लॉस, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, शेयर सर्टिफिकेट खराब हो गया है, इस तरह का नहीं होगा, बिकॉज शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अननेसेसरी पेपर वर्क नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने से क्विक ट्रांसफर होगा, ट्रांजैक्शन विल बी सेटल्ड क्विक। पहले स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन T+7 में होता था, मतलब आज ट्रांजैक्शन किया 7 दिन के बाद पैसा मिलेगा, ट्रांसफर शेयर मिलेगा। फिर T+5 हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आने से इंडिया हैज कम टू T+2 वे ऑफ सेटलमेंट। व्हाट इज T+2 वे ऑफ सेटलमेंट, आप आज अगर ट्रांजैक्शन करेंगे 2 दिन के अंदर आपका शेयर सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो और क्या क्या फायदा है डिपोजिटरी सिस्टम का। अच्छा, जितना जल्दी सेटलमेंट होगा उतना जल्दी कैश आपके अकाउंट में मिलेगा, सेल प्रोसीड जल्दी मिलेगा। फिर शेयर सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो जब चाहे कंपनी मेंबर्स का रजिस्टर एक झटके में पीडीएफ में मांग सकता है एनएसडीएल और सीडीएसएल से। और राइट शेयर, बोनस शेयर और वो सब होल्डिंग, सिक्योरिटी होल्डिंग बेनिफिट्स क्विकली शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो सकता है। स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है, मैं पहले से बता दिया हूं। पीरियोडिकल स्टेटस शेयर होल्डर्स का इजीली कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द डिपोजिटरी व्हिच इज आइदर एनएसडीएल और सीडीएसएल। नेक्स्ट स्लाइड। With this we complete unit 8. Next we will go to next unit, that is unit 9. यूनिट 9 डील्स विथ डिविडेंड। तो अभी हम बात करेंगे डिविडेंड क्या है। मैं पहले से बता दिया हूं, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। कंपनी का प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, डिविडेंड जनरली कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है। ओके, कंपनी एक्ट बोलता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड का डेफिनेशन में डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड
प्लस इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एक एडवांस डिविडेंड है, एडवांस रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड मैं समझाऊंगा। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, उसको हम क्लियर के समझाएंगे। नेक्स्ट, कंपनी एक्ट बोलता है जब भी कंपनी डिविडेंड देगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से देगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिस मैनर में बोलता है उसी मैनर में वो रूल्स फॉलो करके आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड का क्या क्या लीगल प्रोविजन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में इस यूनिट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रोविजन है, आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो डिविडेंड कब मिलेगा, जब शेयर होल्डर्स का एजीएम होगा, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगा, और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट होगा। वो लोग वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, फिर वो डिविडेंड को अप्रूव करेंगे, तो जाकर कंपनी क्या होगा, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, ये डिविडेंड कितना परसेंट होगा वो प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स टू दी शेयर होल्डर्स। प्रपोज कहां पर करते हैं, मीटिंग में करते हैं। कौन से मीटिंग में, जनरली एजीएम में प्रपोजल किया जाता है। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जब कंपनी का होगा, शेयर होल्डर्स लोग आएंगे, डायरेक्टर्स लोग बोलेंगे इस साल हम प्रपोज करते हैं 8% डिविडेंड देंगे, आप लोगों का क्या राय है। तो शेयर होल्डर्स लोग बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, हम बोलेंगे ठीक है 8% हम लेने के लिए तैयार हैं, या नहीं तो वो बोलेंगे नहीं नहीं 8% ज्यादा हो रहा है, आप एक काम कीजिए हमको 6% दीजिए, बाकी का 2% आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए। इसका मतलब शेयर होल्डर के पास राइट है, जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज किए थे उसको कम कर सकते हैं, लेकिन एक्ट बोलता है वो कभी भी वो जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स बोले थे उसको वो कभी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है शेयर होल्डर लोग देखकर बोलेंगे 8% बहुत कम है आप 10% दीजिए, वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो डिविडेंड को कौन प्रपोज करता है, प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स। कौन अप्रूव करता है डिविडेंड को, डिविडेंड को अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। कहां पर अप्रूव करते हैं, डिविडेंड को अप्रूव किया जाता है एजीएम में या जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जनरली डिविडेंड कहां पर डिक्लेयर होता है, जनरल बॉडी मीटिंग में डिक्लेयर होता है। एक बार कंपनी डिविडेंड दे दिया फिर और एक बार कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता। इसका मतलब एक साल में एक बार डिविडेंड दिया जाता है, नेक्स्ट टाइम 2-3 बार नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। एक बार कंपनी का शेयर होल्डर अप्रूव कर दिए, इतना % डिविडेंड दे दिया, फिर नेक्स्ट और एक बार डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इंटरिम डिविडेंड का केस अलग है जो मैं बाद में बताऊंगा। डिविडेंड एक साल में एक बार मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैं बताया था डिविडेंड कंपनी कहां से देगा, क्लियर है। डिविडेंड हमेशा कंपनी प्रॉफिट से देता है, लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या है, कंपनी डिविडेंड इस साल का प्रॉफिट में दे सकता है, इस साल का प्रॉफिट में, या नहीं तो प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट जो कंपनी में पड़ा हुआ है इसके फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में, उससे दे सकता है, या नहीं तो दोनों से दे सकता है, कुछ इससे कुछ उससे। इसका मतलब आपका इस साल का प्रॉफिट है 40, डिविडेंड 40 से ज्यादा हो सकता है, 60 हो सकता है। कैसे, इस साल के प्रॉफिट से 40, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो रिजर्व में होगा उससे 20। तो डिविडेंड किससे दिया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट, इस साल का प्रॉफिट से दिया जा सकता है, या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो रिजर्व के फॉर्म में है उससे दिया जा सकता है, या दोनों से दिया जा सकता है, या नहीं तो कभी कभी डिविडेंड देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा कंपनीज को देते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज को। उस तरह का कंपनीज में आप डिविडेंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिला है उसको यूटिलाइज करके डिविडेंड दे सकते हैं। तो डिविडेंड देने का 4 तरीका है, इस साल का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, दोनों से, या पैसा जो मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बोलता है
डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट से दिया जाता है, कभी भी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। बेटा कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? कैपिटल प्रॉफिट का मतलब आप कुछ एसेट को सेल कर दिए, बिल्डिंग को सेल कर दिया, पैसा आया, उस पैसे से डिविडेंड देना, इसको बोलते हैं डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, ऐसा एक्ट बोलता है नॉर्मल सिचुएशन में डिविडेंड कैन नॉट बी पेड out of capital profit. Dividend can be paid only out of revenue profit. लेकिन कभी कभी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा सकता है प्रोवाइडेड ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला कंडीशन, कैपिटल प्रॉफिट मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। दूसरा पॉइंट मतलब पैसे में कैपिटल प्रॉफिट आना चाहिए। कंपनी का सारा एसेट का रीवैल्यूएशन, एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, अगर नहीं लिखा होगा डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, अगर इस तरह का लिख दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, देन कंपनी कैन नेवर पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, कुछ और लीगल प्रोविजन डिविडेंड के बारे में। अच्छा, डिविडेंड कहां पर डिक्लेयर होता है? जनरली डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है। डायरेक्टर लोग प्रपोज करते हैं और शेयर होल्डर लोग अप्रूव करते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डिविडेंड डिक्लेयर होने का, एजीएम होने का 5 दिन के अंदर उसको एक सेपरेट अकाउंट में बैंक में रखना पड़ेगा, जितना डिविडेंड का पैसा है। बात समझ में आ रहा है? 5 दिन के अंदर वो पैसे को बैंक में रखना पड़ेगा सेपरेट अकाउंट बनाकर। सेकेंड लीगल प्रोविजन बोलता है डिविडेंड कैन ओनली बी पेड इन कैश, वारंट और फंड ट्रांसफर। डिविडेंड कभी भी कैश में नहीं दिया जा सकता है, डिविडेंड हमेशा दिया जाएगा आइदर चेक में या वारंट में या फंड ट्रांसफर में। डिविडेंड कैन नेवर बी पेड इन कैश इन इंडियन कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम ऑफ डिविडेंड। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 30 दिन के अंदर, कितना दिन? 30 डेज के अंदर आपको वो पैसा शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ेगा। 30 दिन के अंदर वो पैसा आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं बताया था 30 दिन के अंदर वो पैसा आपको शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। अगर 30 दिन हो गया आप पैसा नहीं दे पाए, कुछ कारणवशत बैंक स्ट्राइक हो गया, कुछ हो गया, कुछ कारणवशत नहीं दे पाए, या नहीं तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल है, मैं एक सिंगल मैन हूं, मैं ये कोई नॉमिनी वगैरह मेरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मेरा डेथ हो गया, तो डिविडेंड किसको दिया जाएगा? इसीलिए कुछ अमाउंट अगर नहीं दिया जा पाया 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होने का, वो पैसे को हम क्या करेंगे? बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करते जाएंगे। बात समझ में आ गया? अगर कंपनी का गलती से 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो पाया तो कंपनी को उस अनपेड अकाउंट के ऊपर 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। अगर वो ट्रेसेबल नहीं हुआ शेयर होल्डर, उसके लिए अनपेड अकाउंट में पैसा गया, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसे अनपेड अकाउंट में पैसा बहुत दिन तक रहता जाएगा। अगर कोई आदमी है जो नॉन ट्रेसेबल है, वो कहाँ चला गया पता नहीं है, लेकिन उसका सारा का सारा शेयर से उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है, हर साल हम 30 दिन के अंदर अनपेड अकाउंट में डालते जा रहे हैं। ऐसे डालते अगर 7 साल हो गया, 7 साल के बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जितना पैसा है वो पैसा एक सेपरेट फंड में जाएगा। वो फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रमोशन फंड 124/5। उस फंड में आपको पैसा ट्रांसफर कर देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ये 7 साल हो गया, इसलिए हम ये पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन
फंड में डाल रहे हैं और वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का पैसा जो गवर्नमेंट के पास होगा वो यूटिलाइज होगा। इंडिया में जितना इन्वेस्टर्स हैं उसको कैसे मार्केट के बारे में, इक्विटी के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, न्यू कल्चर्स के बारे में, रिस्क के बारे में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे उनको ट्रेनिंग, टीचिंग, गाइडेंस दिया जाता है। हमें क्लियर? अगर ये सब काम कंपनी 30 दिन के अंदर उस डिविडेंड को ऑन पेड डिविडेंड में नहीं डाला या नहीं तो 7 साल के अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में नहीं डाला, पेनल प्रोविजन आर देयर, कंपनी हैज टू पे पेनाल्टी। कंपनी एंड ऑल अदर पर्सन्स हु आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल दोज विल बी पेनलाइज्ड एज पर लॉ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? मैं बताया था डिविडेंड कहां पर दिया जाता है। डिविडेंड जनरली एजीएम में दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इस बार का एजीएम सपोज मेरा हो गया 1 जुलाई को, नेक्स्ट एजीएम जब होगा फिर नेक्स्ट वाला डिविडेंड दिया जाएगा। ओके, लेकिन 2 एजीएम के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा इस बार बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा इस साल में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग अपना एफिशिएंसी जरा शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं। कैसे एफिशिएंसी दिखाएंगे? हम अच्छा काम किए हैं इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेगा हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिविडेंड पहले अनाउंस कर देते हैं। बोर्ड मतलब डिविडेंड अनाउंस कब करते हैं? एजीएम होने से पहले। अगर डिविडेंड अनाउंस कर दिया और उसको दे दिया, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डिविडेंड देने का राइट्स नहीं है, क्योंकि डिविडेंड विल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, दे ओनली प्रपोज। लेकिन इंटरिम डिविडेंड वो दे देते हैं क्योंकि अपना एफिशिएंसी दिखाने के लिए। अगर ये कब हो सकता है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि इस साल प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर खुदा ना करे पहले 6 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ये लोग बहुत खुश होकर इंटरिम डिविडेंड दे दिए, लेकिन बाकी का 6 महीने में पूरा का बिजनेस घाटा में चला गया, कंबाइंड के ऊपर क्या हो रहा है, बिजनेस लॉस में है। उस टाइम में ये लोग बहुत सैना बने थे, कौन? डायरेक्टर लोग। कंपनी एक्ट बोलता है अगर तुम ऐसा काम किए हो, जितना पैसा डिविडेंड दिए हो उसके लिए तुम लोग दैट इज ट्रीटेड एज डिविडेंड पेड आउट ऑफ कैपिटल। ओके, उसके लिए उतने पैसे के लिए कौन जिम्मेदार है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद जिम्मेदार होंगे। तो इंटरिम डिविडेंड डालने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 100 बार सोचना पड़ेगा whether our financial positions can sustain this or not, whether we are actually going to make profit in the year or not. So next slide. तो 2 एजीएम के बीच में अगर डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, कौन दे देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। वो प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज द डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, डायरेक्टर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड देने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा। वो मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, दे आर गोइंग टू गिव इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर डिविडेंड में जो जो रूल्स पढ़े थे, क्या क्या रूल्स पढ़े थे, वो सारा रूल इंटरिम डिविडेंड में। पहला रूल, एक बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 5 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। फिर इंटरिम डिविडेंड को उनको देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? मैक्सिमम 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड भी उसी तरह से आइदर बैंक चेक में दिया जाएगा, या नहीं तो किस में दिया जाएगा, या नहीं तो वारंट में दिया जाएगा, या नहीं तो क्या हो गया, या नहीं तो फोन ट्रांसफर के थ्रू में होगा। अगर 30 दिन हो गया वो लोग इंटरिम डिविडेंड ट्रांसफर नहीं किए, उसको एक सेपरेट अकाउंट हो जाएगा जो पढ़ा था ऑन पेड डिविडेंड अकाउंट में वो लोग ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह से जैसे ऑन पेड डिविडेंड अकाउंट अगर बहुत सारा दिन तक जाएगा वो फिर वो ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में। इसका मतलब सारा का सारा प्रोविजंस जो डिविडेंड में अप्लीकेबल है वो सारा प्रोविजंस इसमें भी अप्लीकेबल है, इंटरिम डिविडेंड में अप्लीकेबल है। इसके साथ हम यूनिट 9 को कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम शुरू करेंगे लास्ट यूनिट, दैट इज नोन एज यूनिट 10।
यूनिट 10 इज रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या मीटिंग। अभी देखो कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स, कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर। सपोज रिलायंस का मालिक 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, वो 10 लाख लोग क्या रिलायंस चलाएंगे, चलेगा रिलायंस? सब लोग ब्रीफकेस लेकर अगर जानेंगे ऑफिस में, रिलायंस ऑफिस में जाऊंगा, कंपनी चलाऊंगा, मैं मालिक हूँ, चलेगा क्या? नहीं हो सकता है। तो सिस्टम बना हुआ है, ये 10 लाख लोग कुछ लोगों को चुनेंगे जो उनके बिहाफ पर कंपनी को चलाएंगे, उन लोगों को बोला जाता है डायरेक्टर्स। एंड कॉम्बाइनली ऑल डायरेक्टर्स आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो कंपनी का ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी को चलाते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ओनली द एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है, एजेंट है, वो कंपनी का सिर्फ ऑपरेशनल डिसीजन ले सकते हैं, छोटा मोटा डिसीजन कंपनी का कौन ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा, बड़ा डिसीजन जो होगा वो मालिक लेंगे, मालिक लोगों लेंगे, मतलब कौन, शेयर होल्डर्स लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक मेनी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, कंपनी बेचने का डिसीजन, मर्जर एक्विजिशन का डिसीजन, मेनी डिसीजंस are cannot be taken by directors, those are to be taken by the shareholders। तो शेयर होल्डर्स कैसे लेंगे में वो सब डिसीजन, मीटिंग करेंगे, तो उसको बोलते हैं मीटिंग। तो मीटिंग, जब शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है उसको हम शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलते हैं या जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का मीटिंग दो तरह का है। कौन कौन सा दो तरह का मीटिंग है? एक मीटिंग है AGM। व्हाट इज AGM? एनुअल जनरल मीटिंग। एक होता है EGM। व्हाट इज EGM? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अभी हम बात करेंगे AGM क्या है, फिर हम बात करेंगे EGM क्या है। फर्स्ट AGM। जनरली AGM एनुअल जनरल मीटिंग, इससे रेगुलर मीटिंग ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये जो मीटिंग होता है जनरली हर साल होता है। ये क्यों होता है? शेयर होल्डर्स लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं कंपनी कैसे चल रहा है, और वो जो डायरेक्टर को बिठाए हैं वो लोग ठीक काम कर रहे हैं या निकम्मा काम कर रहे हैं। अगर ठीक काम कर रहे हैं उनको रीअपॉइंट करेंगे, निकम्मा काम कर रहे हैं उनको निकाल फेंकेंगे। ओके, सो जनरली AGM में क्या होता है, कंपनी में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होता है। व्हाट इज EGM में क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस जनरली AGM में डिस्कस होता है। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। कंपनी के AGM में जनरली ये क्या ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होता है। बिजनेस मतलब क्या क्या मैटर, सब्जेक्ट मैटर। पहला मैटर डिस्कस होता है पासिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स। कंपनी को शेयर होल्डर्स लोग एक साल चलाने के बाद PL बैलेंस शीट बनाएंगे। PL बैलेंस शीट बनाने के बाद उसको ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने के बाद ऑडिटेड अकाउंट्स प्रेजेंट किया जाएगा शेयर होल्डर्स के सामने। शेयर होल्डर्स वो ऑडिटेड अकाउंट्स को देखेंगे और पूछेंगे क्वेश्चन डायरेक्टर्स लोगों को, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स को पास करने का राइट किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास में है। नेक्स्ट, सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मैं अभी पढ़ाया था, डिविडेंड शेयर होल्डर्स लोग प्रपोज करेंगे। हाँ, डिविडेंड डायरेक्टर्स लोग प्रपोज करेंगे, लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, थर्ड वन इज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। मैं बताया था डायरेक्टर्स लोग, जो डायरेक्टर रिटायर करेंगे, generally 1/3 of the directors retire by rotation. There are cases, so when we will read the director chapter we will discuss. जो डायरेक्टर रिटायर करेंगे उनके जगह पर नया डायरेक्टर को चुना जाएगा। कहां पर? AGM में। नेक्स्ट, कंपनी का ऑडिटर कौन होगा और उसको कितना पैसा दिया जाएगा, वो सारा चीज फिक्स होगा AGM में। These are the ordinary business to be dealt in AGM। इसके अलावा और कोई डिसीजन होगा और कोई चीज आएगा, ये चारों तो कॉमन होगा ही होगा AGM में। इसके अलावा और कुछ करना चाहते हैं वो भी डिस्कस हो सकता है AGM, प्रोवाइडेड प्रॉपर नोटिस ऑफ दैट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन एडवांस। नेक्स्ट, सो व्हाट इज AGM? AGM, एक कंपनी को AGM करना एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कंपल्सरी है AGM को। कंपनी का फर्स्ट AGM कब होगा? कंपनी एक्ट बोलता है एक बिजनेस कमेंस हुआ, कमेंस होने का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका जब कंप्लीट हो जाएगा
उसका 9 महीने के अंदर उसको फास्ट एजीएम करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट एजीएम कब करना पड़ेगा? सब्सिक्वेंट एजीएम, फास्ट एजीएम मतलब एक बार जिंदगी में होगा फास्ट एजीएम। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम जब होगा तो सब्सिक्वेंट ईयर में जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसका 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। फास्ट में 9 महीना है और सब्सिक्वेंट में 6 महीना है। लेकिन उसके साथ 2 और कंडीशन लगा हुआ है। 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 एजीएम के गैप 15 महीना मैक्सिमम होगा। अगर आप कोई भी कारण से 15 महीने से अंदर आप अगर 2 एजीएम नहीं कर पा रहे हैं, आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा। आरओसी को बोलना पड़ेगा आप थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दे दीजिए, ये सिचुएशन था, हम 2 एजीएम कर नहीं पाए 15 महीने के अंदर, एक एजीएम होने का 15 महीना बीत गया, नेक्स्ट एजीएम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आरओसी अगर चाहे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है, मैक्सिमम और 3 महीना देगा। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग एजीएम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एजीएम कब होगा? जनरली एजीएम एक वर्किंग डे में होगा। वर्किंग डे मतलब मंडे से लेकर किसमें सैटरडे तक। नेक्स्ट एजीएम मतलब कोई होगा कोई छुट्टी के दिन में, जैसे नेशनल हॉलीडे हुआ वहां पर एजीएम नहीं हो सकता है। जनवरी 26 को आप एजीएम करना चाहते हैं, नहीं होगा। एक वर्किंग डे होगा, वर्किंग डे में एजीएम होगा। और एजीएम कब होगा? बिजनेस आवर के अंदर होगा। बिजनेस आवर मतलब एजीएम शुरू होगा 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। कब खत्म होगा एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शुरू होगा 9 बजे से 6 बजे के अंदर। आप एजीएम शाम 7 बजे नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। और एजीएम कहां पर होगा? जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में एजीएम होता है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह छोटा पड़ जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है उस सिटी में कोई अच्छा लोकेशन लेकर आप एजीएम कर सकते हैं। अब हमें क्लियर, अगर कंपनी एजीएम करने में डिफॉल्ट होता है, कर नहीं पाता है, कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 1 लाख रुपया। और जो जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है उनको भी फाइन किया जाएगा पेनल प्रोविजन के साथ। आप अगर ये डिफॉल्ट को कंटिन्यू करते हैं, जितना दिन का डिफॉल्ट होगा और एक्स्ट्रा 5-5 हजार का और लगेगा। सो दिस इज द पेनल प्रोविजन फॉर नॉट कंडक्टिंग एजीएम। Next meeting is EGM. What is EGM? Extraordinary General Meeting. में कंपनी एक्ट बोलता है जनरल मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर का मीटिंग हुआ और वो एजीएम नहीं है, और एजीएम को छोड़कर शेयर होल्डर का जितना मीटिंग होता है वो सारा मीटिंग को हम EGM बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एजीएम में जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होता है, लेकिन ईजीएम में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। तो ईजीएम में जो स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा, वो कौन सा बिजनेस ईजीएम में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा। उस स्टेटमेंट का नाम है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो जब ईजीएम का नोटिस दिया जाएगा, वो नोटिस में ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना बाउंड है, ये लगाना कंपल्सरी है। तो इसका मतलब ईजीएम का नोटिस जब दिया जाएगा, इतने दिन के बाद एजीएम होगा, तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा। वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाएगा कौन सा स्पेशल बिजनेस ईजीएम में डिस्कस होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ईजीएम कौन बुला सकता है? जनरली ईजीएम ये 4 पार्टी बुला सकते हैं। कौन कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप ईजीएम बुला सकते हैं, या नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्विजिशन करके कुछ शेयर होल्डर्स ईजीएम बुला सकते हैं, या नहीं तो कुछ शेयर होल्डर्स रिक्विजिशन करके खुद ईजीएम बुला सकते हैं। नेक्स्ट नहीं तो एनसीएलटी ईजीएम बुला सकता है। तो ये चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कब बोर्ड ईजीएम बुलाता है। तो लिखिए फर्स्ट ईजीएम बाय बोर्ड। अगर एक बार एजीएम हो गया है, लेकिन कोई इंपोर्टेंट इमरजेंसी मैटर स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन लेना जरूरी है और वो तुरंत लेना जरूरी है, नेक्स्ट एजीएम तक हम वेट नहीं कर सकते हैं, उस तरह का डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी ईजीएम बुलाते हैं।
ईजीएम बुलाने के लिए सफिशिएंट नोटिस देना पड़ेगा। 21 डेज का नोटिस देकर हम क्या करते हैं, ईजीएम बुलाते हैं। नेक्स्ट ईजीएम बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं देख रहा हूं कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये ईजीएम होने तक, 1 साल होने तक कंपनी पूरा डूब जाएगा। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा इस कंपनी में ठीक नहीं चल रहा है, आप क्या करोगे, आप ईजीएम बुलाइए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कंपनी में ठीक नहीं काम चल रहा है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे तुम एक आदमी आओगे तो क्या होगा, हम क्या ईजीएम बुलाएंगे इससे और कोई आएगा। तो कंपनी एक्ट बोलता है अगर कोई कुछ शेयर होल्डर्स जिनके पास 1/10 मतलब 10% वोटिंग राइट वाला लोग आ जाएं या 10% पेड ऑफ शेयर रखने वाले लोग आ जाएं, वो एप्लीकेशन दें बोर्ड को, आप ईजीएम बुलाए तो बोर्ड को ईजीएम बुलाने के लिए वो बाउंड। समझ में आ रहा है क्या? बोर्ड हैज टू कॉल ईजीएम विदिन 45 days of receipt of the application by the shareholders to call ईजीएम। लेकिन वो शेयर होल्डर में कौन साइन करना चाहिए, वो शेयर होल्डर साइन करना चाहिए जिनके पास मिनिमम टोटल मिलाकर 10% शेयर कैपिटल हो, या नहीं तो 10% वोटिंग राइट हो। ठीक है, नेक्स्ट कितने दिन के अंदर होना चाहिए, 45 डेज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगर 45 डेज के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम बुलाए ही नहीं, इसका मतलब ये एप्लीकेशन दिए हैं ईजीएम बुलाए ही नहीं, तो ये जो 10% आदमी रिक्विजिशन किए थे ईजीएम बुलाने के, ये अपने आप एक ड्राफ्ट कर देंगे, ये ईजीएम इज टू बी कॉल्ड एंड इट इज टू बी हेल्ड एट दिस प्लेस एंड यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम। वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद अपने आप ईजीएम बुला सकते हैं, प्रोवाइडेड 45 दिन गुजर गया है। फिर वो कैसे बुलाएंगे, जनरली कंपनी एक्ट बोलता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम बुलाते हैं उसी फॉर्मेट में, उसी प्रोसीड्यूर में, उसी तरह से नोटिस देकर ये 10% रिक्विजन मतलब एप्लीकेशन जो दिए हैं वो ईजीएम बुला सकते हैं। वो कहां पर ईजीएम करेंगे, जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में करेंगे, लेकिन डायरेक्टर्स लोग को अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में घुसने नहीं दिए इनको तो किसी और प्लेस में करेंगे, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस जो सिटी है उसके अंदर किसी और प्लेस में भी ईजीएम हो सकता है एंड द डिसीजन ऑफ दैट ईजीएम विल बी बाइंडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ईजीएम हो गया, ईजीएम बाई एनसीएलटी। अच्छा, ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम करने के लिए उनके पास मिनिमम 10% होना चाहिए, लेकिन अगर 2% शेयर होल्डर्स हैं या 1% शेयर होल्डर हैं या एक शेयर होल्डर है या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको पता चल रहा है कंपनी में सब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ है, ये शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए, लेकिन ईजीएम बुला नहीं रहा है डायरेक्टर्स लोग, वो लोग क्योंकि वो खुद नहीं बुला सकते हैं कि उनके पास कितना परसेंट नहीं है, 10% नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट में चला जाएंगे। कंपनी का कोर्ट बोलते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी में जाएंगे, कौन जा सकता है, शेयर होल्डर्स जा सकता है, कौन जा सकता है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर जा सकता है, या पेपर से पढ़कर एनसीएलटी को लगेगा ये कंपनी में ठीक नहीं है तो अपने आप कोर्ट भी ईजीएम बुलाने का इंस्ट्रक्शन कंपनी को दे सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। When NCLT will give notice of its own on the application of any director or any members of the company. NCLT डायरेक्शन दे सकता है क्या बुलाने के लिए, ईजीएम बुलाने के लिए। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रिक्विजाइट ऑफ ए वैलिड मीटिंग। अगर कहीं पर मीटिंग होता है, जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उसका क्या क्या रिक्विजाइट होता है, क्या क्या फीचर्स होता है। पहला चीज प्रॉपर अथॉरिटी, ये मीटिंग बुलाने का अथॉरिटी होना चाहिए, जो आदमी मीटिंग बुला सकता है वही मीटिंग बुलाएगा। जनरली एजीएम या ईजीएम कौन बुला सकता है, एजीएम बुला सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ईजीएम कौन बुला सकते हैं, 4 आदमी में अभी बताया था। कौन बोर्ड बुला सकता है, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन बुला सकता है, या नहीं तो एनसीएलटी बुला सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, ये 4 जो डिस्कस किए हैं वो बुला सकते हैं। और ईजीएम में नोटिस दिया जाएगा, और एजीएम और कोई भी मीटिंग होगा
उसमें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मतलब आपको बोला जाएगा इस डेट में ईजीएम और एजीएम होने वाला है, और नोटिस कितने दिन का होगा, 21 दिन का होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट, कोरम। व्हाट इज कोरम? कोरम का मतलब एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग में कितना आदमी आए तो मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। आप एजीएम या एजीएम बुलाए, कोई आया ही नहीं या एक आदमी आया, तो वो मीटिंग वैलिड होगा या नहीं? कितना मिनिमम आदमी आएंगे तो वो मीटिंग वैलिड होगा, उसको बोलते हैं कोरम। प्राइवेट कंपनी में कोरम है 2, मतलब 2 आदमी आ जाएंगे तो वो मीटिंग क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा प्राइवेट कंपनी में। लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 तरह का स्लैब है। अगर एक पब्लिक कंपनी है उसमें शेयर होल्डर 1000 है, वहां पर कोरम है 5। शेयर होल्डर 1000 से 5000 के बीच में है, कोरम है 15। अगर 5000 से ज्यादा है, कोरम है 30। तो 5 कोरम किसके लिए है? अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके पब्लिक कंपनी में 1000 है तो कोरम है 5। अगर 1000 से 5000 के बीच में है, कोरम है 15। अगर 5000 से ज्यादा है, कोरम है 30। अगर मीटिंग होता है, वो मीटिंग को कोई चेयर करता है, कोई प्रिजाइड करता है, उस जो आदमी प्रिजाइड करता है उसको बोला जाता है चेयरमैन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रॉक्सी। व्हाट इज ए प्रॉक्सी? अगर आप ना जाकर मीटिंग में, आपके बदले में आप किसी और को भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। मीटिंग कोई कोई कंपनी में प्रॉक्सी अलाउड होता है, कहीं कहीं पर प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता है। जैसे हम लोग जब अटेंडेंस लिया जाता है, हम लोग कॉलेज में कोई प्रॉक्सी मार देते हैं। प्रॉक्सी मतलब वो आदमी आया नहीं, उसके बदले में और कोई। तो किसी किसी कंपनी में कोई कोई मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड होता है, कहीं कहीं पर प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता है। ये डिसाइड होगा एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा, मीटिंग में बहुत सारे लोग आ गए, फिर मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन कैसे लिया जाता है? मीटिंग में डिसीजन वोटिंग से लिया जाता है। वोटिंग मतलब वोट किया जाएगा, इस डिसीजन के लिए कितने लोग राजी हैं, कितने लोग राजी नहीं है। ये जो वोट होता है, ये वोट 2 वे में हो सकता है। पहला है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठाओ, कितना लोग राजी हैं हाथ उठाओ, गिन लेंगे। कितना लोग राजी नहीं है, बाकी लोग जितना प्रेजेंट है माइनस कर लेंगे तो राजी नहीं है। इस हिसाब से वोटिंग हो सकता है। या नहीं तो पोल हो सकता है। पोल मतलब जैसे वोट होता है, पर्ची होता है, ये नो करेंगे या टिक क्रॉस करेंगे, उस हिसाब से पोल भी हो सकता है। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? ए प्रपोजल पास्ड इन ए मीटिंग इज नोन एज रिजोल्यूशन। मीटिंग में जो प्रपोजल, जो डिसीजन लिया गया है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन 2 तरह का होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब प्रपोजल टेकन और डिसीजंस टेकन इन ए मीटिंग, प्रपोजल पास्ड इन ए मीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रिजोल्यूशन मैं बता रहा था। रिजोल्यूशन का मतलब एक प्रपोजल व्हेन पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स बिकम्स ए रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन कितने तरह का है? 2 तरह का। एक है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक है स्पेशल रिजोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? एक चीज के ऊपर वोटिंग हो रहा है। सपोज 100 आदमी प्रेजेंट है मीटिंग में, 50 से ज्यादा आदमी अगर उसमें फेवर में है, मतलब 51 आदमी फेवर में हो गए और 49 आदमी अगेंस्ट में है, द डिसीजन इज पास्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में रिजोल्यूशन 50% से ज्यादा मत से अगर पास हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या होता है? जस्ट डिसीजन फेवर में जितने आदमी हैं, अगेंस्ट में जितने आदमी हैं, अगेंस्ट आदमी से फेवर वाला आदमी अगर एक भी ज्यादा हो गया, द डिसीजन इज पास्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो वोट इन फेवर is greater than vote in against only by 1 vote, then the decision is passed by ordinary resolution. Ordinary resolution 50% से ज्यादा अगर लोग राजी हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरली एनुअल अकाउंट्स को पास करने के लिए,
डिविडेंड देने के लिए, डायरेक्टर का इलेक्शन करने के लिए, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, शेयर को डिस्काउंट में इश्यू करने के लिए, इन सब के लिए जनरली मीटिंग में सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव डिसीजन होते हैं, उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन काम नहीं देता है। वो सेंसिटिव डिसीजन, जैसे हम मेमो को चेंज करना चाहते हैं, आर्टिकल को चेंज करना चाहते हैं, उस तरह से सेंसिटिव डिसीजन लेने के लिए हमको स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय 3/4 मेजोरिटी। इसका मतलब 75% अगर राजी हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन से वो डिसीजन पास हो सकता है। 75% मतलब राजी अगर 75% से ज्यादा हो तो राजी 25% होंगे। इसका मतलब फेवर में जितने हो, एगेंस्ट में जितने हो, एगेंस्ट वाले से फेवर वाला 3 गुना ज्यादा है। 25-75, 25 का 3 गुना कौन है? 75। तो उस तरह का केस में अगर 75% से ज्यादा या 3/4 से ज्यादा लोग राजी हों तो डिसीजन पास हो सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन में। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जनरली सेंसिटिव मैटर में लगता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास चाहिए, ये डिसीजन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। तो ये चीज जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोटिस देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा जाएगा ये डिसीजन में हमको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ये लिखा जाएगा और मीटिंग में वोट होगा और 3/4 लोग अगर राजी होंगे तो जाकर द प्रपोजल विल बी पास्ड विथ स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड। With this we complete all the units. Thank you all. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. हाँ, Sir, there is a question. Why there is a common perception in people's mind that investing in share or stock is market risky? It's risky. आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो रिस्क तो आएगा, लेकिन आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? आपको अगर वो बिजनेस के बारे में पता नहीं, आप वो बिजनेस का शेयर खरीद लेंगे तो रिस्क होगा। आपको सपोज आपको पता नहीं है आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, आईटी बिजनेस के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप उसका एनालिसिस नहीं किए, ब्लाइंडली ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से सुनकर आपको लग रहा है ये शेयर में पैसा डालने से पैसा मिल जाएगा, ऐसा पैसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एनालिसिस करके रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका अगर है तो आप उस कंपनी के शेयर में पैसा डालेंगे। तो शेयर का इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिस्की बिकॉज इट्स नॉट सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालिए, वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। बैंक में डिपॉजिट रखिए, थोड़ा बहुत सेफ है, आज के डेट में बैंक भी डूबने लगे हैं। आप अगर शेयर में पैसा डालते हैं, आप कुछ रिस्क लेते हैं, आप एक बिजनेस करते हैं, वो क्योंकि आप ओनर बनते हैं। जब आप ओनर बनते हैं तो आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। इसीलिए आप जब भी कोई कंपनी के शेयर में पैसा डालें, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मेनी वे ऑफ एनालिसिस है। तो मेरा ये सजेशन है, कोई भी आदमी, कोई भी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर अगर पैसा डालना चाहता है मार्केट में, वो डायरेक्टली मार्केट में पैसा ना डाल के वो क्या कर सकता है? ही कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड के थ्रू में पैसा डालेगा तो म्यूचुअल फंड में यू विल गेट डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, as a result of which your risk will be diversified. Next. और कोई है क्या? Thank you, sir. And there is another question. Are NSDL and CDSL? हाँ, दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ही बनाया है, दोनों गवर्नमेंट ही बनाया है, NSDL और CDSL. Yes, sir. Thank you, sir. And any more questions from any learner?
they can ask. If there is no question, then we will wind up this session. Any more questions? Sir, I think sir, we should wind up, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir, for such a nice lecture regarding share capital. I hope the students must learn a lot from this session. So, on behalf of Odisha State Open University, I want to thank all those who are involved in this session. First of all, I would like to thank Dr. Biswaranjan Mishra, sir. Then I would like to thank Mr. Prithviraj Mishra, sir, and special thanks to Rudra sir and Devashish sir for their dedicated technical support. And in this session, we have learned about share capital, transmission of share, transfer of share, allotment of shares, what is a depository system, what is a demat account, what are the policies regarding dividend, what is shareholders meeting, what is annual general meeting, what is extraordinary general meeting, what are the requisites of a valid meeting, what is declaration of dividend, what are the legal provisions regarding the declaration of dividends, and so many things. So such a bundle of knowledge we have acquired from you, sir. I hope all the learners will immensely be benefited from this session. And again, thank you to all, sir. And I request all the learners to be please disengage themselves from this session. And this is an official announcement of the end of the session. Thank you.